اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو تعجب میں نہ ڈالے تم کو ان کی مال و دولت اور نہ ان کی کثرت اولاد۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو مبتلا عذاب کرے انہی چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں بھی، اور نکلے ان کی جان ایسی حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کو ان کی مال کی کثرت، یعنی دنیا جو ان کو ملی ہوئی ہے، ان کی زیادتی آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، نہ یہ بات اس تعجب میں ڈالے کہ ان کی اولاد زیادہ ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں اور پھر بھی ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، پھر بھی ان کے پاس اولاد زیادہ ہے۔ یہ نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو بات تعجب میں نہ ڈالے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے سے ہی ان کو عذاب دے گا، کہ ان کی اولاد زیادہ ہوگی، نافرمان نکلے گی، ہر بندے کی اپنی اپنی وہ باتیں ہوں گی، کوئی کسی کے کہنے میں نہیں ہوگا، دولت کے پیچھے لڑتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی چیزوں سے دنیاوی زندگی میں بھی ان کو عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب ان کی جان نکلے، ان کی موت ہو، تو یہ کافر ہی مریں، کہ آگے پھر ان کو جہنم کا عذاب بھی ملے، کہ یہاں بھی ان کی زندگی پیسے ہونے کے باوجود اجیرن ہو، بیٹوں ہونے کے باوجود اجیرن ہو، اور قیامت میں بھی ان کو دوزخ کے عذاب میں جلنا پڑے۔ تو ناظرین، یہ جو مال و دولت کی کثرت یا اولاد کے گھمنڈ میں بندے کو نہیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایمان کا تقاضا کرنا چاہیے، اور اتنا ملے کہ کسی کے آگے بندہ ہاتھ نہ پھیلے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ نہیں ہیں وہ تم میں سے، اصل میں وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خوف زدہ ہے۔ یعنی یہاں پھر منافقوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر کر کے کہ اے نبی، یہ تم سے قسمیں کھا کے بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تم میں سے ہیں، کیونکہ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ منافقت مدینے کے اندر تھی، اور مدینے کے اندر یہودی اور عیسائیوں کا یہ کام تھا۔ آج کل کے بھی جو بناوٹی مسلمان بنے ہوئے ہیں نا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرز پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہیں پیروی کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی، نبی کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کی پیروی تو خالص ایمان والا کرے گا، وہ مسلمان ہی کرے گا، وہ مرے گا بھی مسلمان، جیے گا بھی مسلمان۔ جو فرقوں کے اندر ہوگا اور وہ جس میں بناوٹی کام ہوگا، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرز پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم سے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ اصل میں وہ لوگ ایسے ہیں کہ خوف زدہ ہے، یہ آپ لوگوں سے خوف زدہ ہے کہ کہیں ان کو اصلیت نہ پتہ چل جائے کہ ہم تو یہ بناوٹی مسلمان ہیں، ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے، کام تو ہم اپنی مرضی کے کر رہے ہیں۔ جس طرح آج کل کے لوگ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، کام اپنی مرضی کرنے، جو اچھا لگا وہ کیا، نام مسلمانی کا یوز کیا، اگر کہو تو کہیں ہاں ہاں ہم تو مسلمان ہیں بھائی۔ کام چاہے وہ قبر پہ پڑھا رہے، کام پہ چاہے وہ علم پہ پڑھا رہے، کام کے ذریعے چاہے وہ پتہ چلے کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، لیکن نام مسلمانی کا یوز کریں گے، خود کو ایمان والا بولیں گے، ایمان کی ایک ذری ان کے اندر ایمان کی داخل نہیں ہوگی، اور بتائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر پالیں وہ کوئی جانب یا غار
या कोई घुस बैठने की जगह तो वो उल्टे दौड़ पड़े उसकी तरफ रस्सियां तुड़ाते हुए। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब ये जंग लगती है, इनको अगर कहीं बुलावा आ जाता है कि आओ लड़ो, तो इनको अगर कोई जाए पनाह मिल जाए या कोई गार मिल जाए या कोई ऐसी जगह के जहां छुपने की इनको जगह मिल जाए तो उल्टे पांव पीछे भागेंगे। ये मुनाफिक ऐसे हैं कि ये लड़ने वाला तो काम इनमें है ही नहीं, अल्लाह ताला के अहकामों को तो ये मानते नहीं है, बस ये इनकी जान पे आती है तो ये भागने की करते हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इनको बांध के भी रखा जाए ना तो रस्सियां तुड़ा के भागेंगे। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एतराजात करते हैं तुम पर सदकात की तकसीम के सिलसिले में, फिर अगर उन्हें दिया जाता है उसमें से कुछ तो राजी हो जाते हैं और अगर ना दिया जाए उसमें से तो वो बिगड़ने लगते हैं। यानी फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नबी, जब आपके पास सदकात और खैरात का माल आ जाता है तो इन्हीं मुनाफिकों वालों, मसलन जिन्होंने खाली कलमा पढ़ा होता है मुसलमानी का, मैंने बताया ना कि वहाँ जब मदीने की रियासत में जंग लगती थी या कुछ लोग आते थे जो सदका देते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास नहीं रखते थे, वो खैरात कर देते थे, दे देते थे। अभी देने के लिए भी कोई लोग चाहिए। अभी कुछ ऐसे भी लोग आते थे जिनके पास पहले ही कुछ ज्यादा होता है, जिस तरह यहां अगर कोई गवर्नमेंट जिस तरह बेनजीर के इनकम के पैसे दे रही होती है, तो ऐसे भी जो अच्छे खासे खाते पीते घराने के हैं वो भी लाइनों में खड़े होते हैं। तो ये वही चीज है कि वो भी लोग आ जाते थे जो खाते पीते थे, फिर कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दे देते थे, अगर दे देते थे वो तो राजी हो जाते थे, और जिनको नहीं मिलता था तो वो बिगड़ने लगता था कि मुझे नहीं मिल रहा, बाकी सबको दे रहा है। ये एतराज किस पे वो कर रहे थे? नबी पर। मैंने बताया कि हम नबी पर कोई एतराज काम पर नहीं कर सकते, क्योंकि नबी का कोई भी जो दीनी काम होता है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। किसी और को पर हम एतराज कर सकते हैं, वो चाहे सहाबी हो, चाहे किसी फिरके ने उसको इमाम माना हो। इमाम का मतलब यही तो होता है रहनुमा, आगे रहनुमाई करने वाला, तो कोई भी हो वो, लेकिन नबी और रसूल से इख्तिलाफ नहीं हो सकता। नबी और रसूल की जो बात होगी, जो फैसला होगा, वो मनो अन मानना पड़ेगा और दिल की खुशी से, रजा से मानना पड़ेगा। ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी मान लिया, दिल के अंदर उसके लिए खलश रख दी, ये मुनाफिकत है। तो यही लोग वो कर रहे थे, एतराजात कर रहे थे नबी की सदकात में तकसीम के लिए। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आल पर सदके को हराम करार दिया था, इस बात को बचने के लिए कि लोग ना समझे कि मैं ये खुद खा रहा हूं। हालांकि सदका उन पर हराम था नहीं, उन्होंने खुद करार इस वजह से दिया कि लोगों को यकीन हो कि भाई मैंने सदका का माल नहीं खाना। आप ये एतराज कर रहे हो कि शायद ये बचा के खुद खा रहा है, लेकिन फिर भी लोग ये एतराज करते थे ये अपनों को दे रहा है। लोगों को वो तो बहाना चाहिए था। जो लोग एतराज करते थे तो वो क्या यहूदी और ईसाई करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों में वो जो वो सदकात बांटते थे, मुसलमानों में बांटते थे, और वो बिराए ना मुसलमान बने हुए थे, मुनाफिक लोग थे, और वो सहाबियों की लिस्ट में जिनका ये तज़किरा कुरान कर रहा है। आगे फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या अच्छा होता अगर वो राजी हो जाते उस पर जो दिया था उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने, और कहते कि काफी है हमारे लिए, अल्लाह अनकरीब अता करेगा हमको अल्लाह अपना फजल और उसका रसूल भी, और यकीनन हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर इनके लिए ये अच्छा होता कि जो उनको अल्लाह ने दिया था, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया था माल, उस पर राजी रहते,
क्योंकि ये खामा खा का खाना पीना अच्छा नहीं लगता। एक आपके पास पेट भरे हुए जगह है, फिर भी आप गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर उसका रसूल भी उनको जो कुछ दे रहा था वो ले लेते चुप करके, उन पर नुक्ताचीनी ना करते। फिर आगे फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और कहते कि अल्लाह ताला अपने फजल से हमें और अता करेगा और उसका रसूल भी, यानी जो कुछ हमें अल्लाह की तरफ से मिला है या रसूल ने जो कुछ हमने दिया है इससे कुछ ज्यादा भी दे देगा, बस जो कुछ मिला है वो हमारे लिए काफी है। अगर ये कहते तो उनके लिए अच्छा था, और ये कहते कि हमें अल्लाह की तरफ लौटना है, उनको लौटने की अल्लाह ताला की तरफ जाने की फिक्र होती तो ये बात ही ना करते। तो ये किन का जिक्र हो रहा है? वो नाम नहाद मुसलमानों का जिन्होंने खाली कलमे को पढ़ा हुआ था, जो नबी को ऊपरी ऊपरी मान रहे थे। फिर आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हकीकत यह है कि सदका तो दरअसल फुकरा गरीब लोगों का हक है, मसाकीन मिस्कीन लोगों का हक है, और उनके लिए जो मामूर हैं सदकात की तकसीम पर, और उनके लिए जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब हो, नीज गर्दने छुड़ाने के लिए, कर्जदारों की मदद करने के लिए, और अल्लाह की राह में और मुसाफरी में खर्च करने के लिए, ये ज़ाब्ता है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। यहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़कात या सदकात किसका हक है। यहां पूरी तफसील एक अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये नबी सदकात जो हक है वो फुकरा लोगों का। फुकरा का ये होता है कि सामने आपको नजर आएंगे कि ये बन ठन के बंदा बैठने वाला है, लेकिन उसके लिए पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। गरीब लोग होते हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लगे सारा है कि ये बहुत अमीर बंदा है शायद, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं होती है। तो अल्लाह ताला फुकरा का जिक्र कर रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि मसाकीन का, मिस्कीन लोग। यहां तो पता ही नहीं चल रहा होता है कि मिस्कीन है कौन, क्योंकि यहां सब लेने वाले होते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो लोग जो सदकात के काम पर मामूर किया है जिनको अल्लाह ताला ने, यानी जो गवर्नमेंट रखती है बंदों को कि जाकर ज़कात शकात ले आए, उनको उस सदकात में से वो मिलेगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और उनके लिए जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब हो, यानी जो नए नए मुसलमान बन रहे होते हैं और उनके पास इतना कुछ नहीं होता कि वो खा पी सकें या कोई काम काज कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये सदकात रखे हैं कि आप उनको ये दें तो ये अपनी ज़िंदगी का कारोबार वो इस तरह चलाएं। मैंने बताया ना कि यहाँ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बंदे को करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फिर उन सदकात को इसलिए रखा हुआ है कि आप गरीबों की इस तरह मदद करें, तालीफ कल्ब करें कि उनको इस्लाम के बारे में कुछ अच्छा ही मालूम हो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नीज गर्दने छुड़ाने, किसी से कोई कत्ल वगैरह हो गया है, अभी वो अपनी जान छुड़ाने के लिए चाह रहे हैं, तो वो उस सदकात में से उसका कर्ज अदा किया जाएगा। इस तरह कुछ जो रवायात आती हैं, कुतुब अहादीस जिसको हम रवायात का नाम दे सकते हैं और देना ही चाहिए, वो दीनी कुतुब नहीं है, उनमें आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी इस तरह भी वो सदकात से गर्दनें छुड़ाई हैं। और फिर कर्जदारों की मदद करने के लिए कि कोई कर्जदार अपनी मदद कर कर्ज को छुड़ा ले, और फिर अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मुसाफरी के खर्च के लिए, यानी मुसाफिरों के लिए खर्च के लिए भी वो सदकात दिए जाते हैं।
یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 60 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 61 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔